أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah who gives and forgives. Today I'm going to explain a very interesting topic in your course of the subject English Comprehension and Composition. For this purpose, I would like to share my screen with you guys so that you can easily cope with the facts. Okay, so this is the today's topic, which is about the writing skill. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपको जो राइटिंग टास्क है, जो आपकी राइटिंग स्किल है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए. ठीक है, इसमें हम डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर, that what are the steps to for the writing process. एक्चुअली जो हम राइटिंग स्किल्स की बात जब हम करते हैं तो राइटिंग, अगर हम अकेला राइटिंग लें तो राइटिंग जो है ये जस्ट एक नॉट ए just write down something. It is a complete process. Actually, writing skill is a complete process. So today we will discuss what are some writing processes that you guys will use while writing about some topic or some assignments. So the first step is you have to start with this point, that is pre-writing. The pre-writing is for what? Pre-writing task is, you know, as जैसे हमें प्री से पता चल रहा है कि प्री का मतलब जो होता है वो पहला, यानी किसी चीज को पहले से लिख लेना. ठीक है, यहाँ पे हम राइटिंग की बात करेंगे तो इट मीन्स कि किसी चीज को हम पहले से लिख लें. अब पहले से लिखने से क्या मुराद है? फर्ज करें कि आपको कोई ऐसे दिया जा रहा है. ठीक है, तो उस ऐसे में जो है आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि यू हैव टू राइट डाउन an essay about some topic. Like if I give you a topic about the funniest thing in your life, so what you gonna do? You have to pre-write something about this topic. Actually, there are two methods for the writing this task. The one is called pre-writing, and in pre-writing you have two techniques to pre-write your task. The one is you can say that you're brainstorming, and the other is free writing. And there are many other techniques that we will discuss in the upcoming lectures about this skill. So basically, I would like to explain about the essay. So if you guys are required to write down about some topic you are familiar about, the steps are the what are the kinds, are the what types of an essay have or has. So actually essays could be classified into 4 types. It means that कि जो हमारे पास ऐसे आएगा, जो हमें ऐसे हमें लिखने के लिए दिया जाएगा, उसकी 4 टाइप्स होती हैं. ठीक है, अब इन 4 टाइप्स को अब हम
आगे एक्सप्लेन अगर फर्दर करें तो पहली टाइप को हम कहेंगे एक्सपोजिटरी essay. Then number 2 is descriptive essay. And then number 3 is argumentative essay. And then number 4 is the narrative essay. So these are the types of essay. We will discuss about all these types in our upcoming lectures. We will discuss in details about all these types, and we will do some practice by giving some task to you guys that after reading and after explaining these types, you're familiar with these all kinds of essays. So I will give you a task and you guys have to narrate according to these kind of skills I will explain in the next lectures. So today, back to the point of this today's lecture, that is about the writing process. So I'm talking about the first step, that is about the pre-writing. So actually pre-writing means that you have to write something before you start your actual task. In the upcoming slides हम इसमें देखेंगे कि आपको जो प्री राइटिंग करने की जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअली जो प्री राइटिंग होता है इसमें जो होता है, आपने किसी भी ऐसे या कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए लिखने के लिए, तो उसमें अगर आपको ये कहा जाए कि जी आप जस्ट ये टॉपिक है और आप जो है वो इस पे लिखना शुरू कर दें, ठीक है. तो अब एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली जाके पेज के ऊपर लिखना शुरू कर दें और आपने कोई उसके बारे में प्लानिंग नहीं की, कोई उसके बारे में कोई हिंट्स या कोई भी कीवर्ड्स जो हैं वो आपने नहीं लिए. तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है. प्री राइटिंग में क्या करते हैं हम, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि आप डिफरेंट आइडियाज़ को जो है वो कलेक्ट करके उनमें से जो आइडियाज़ जो आपको लगता है कि दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस टॉपिक, सो आप उनको चूज कर लेते हैं. तो एक तरीका तो ये होता है. फिर हम जब इस स्टेप में सिर्फ हमने यही करना है कि हमने उन कीवर्ड्स को अपने जो उनको लिख लेना है, ठीक है. जब हम उन कीवर्ड्स को बना लेंगे तो अब उसमें जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. अब इसमें एक और, जब हम प्री राइटिंग करते हैं तो इसमें अब एक और चीज़ भी आ जाती है कि आपने क्लस्टरिंग करनी है, ठीक. एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है कि आप क्लस्टरिंग कर लें. फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसे आ जाए तो आपको कहा जाए कि ये यू हैव टू राइट डाउन ऑन दिस ऐसे. सो वन टेक्निक before writing is to cluster your topic, making some actually cluster is you know about something. suppose कि अगर मैं आपको कह दूं कि आपने माई स्कूल के ऊपर एक फर्ज करें, फॉर एग्जांपल माई स्कूल या माई यूनिवर्सिटी चले ले लें आप, ठीक है जी. कि आपने माई यूनिवर्सिटी के ऊपर आपने एक टॉपिक लिखना है, तो आप उसको क्लस्टर कैसे करेंगे, ठीक है. तो क्लस्टर का मतलब ये होता है कि जो आपकी माई यूनिवर्सिटी है ये आपका जो मेन जो टॉपिक है वो होता है, और इसकी जो आगे आप इसको सब हेडिंग्स करके दे दें, ठीक है. यानी अब माई यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, माई यूनिवर्सिटी के अंदर आप कह सकते हैं कि जी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं. फर्ज करें मेरी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस भी है, आप उसको क्लस्टरिंग में जाके पहले पहले बात ये लिखते हैं कि जी इसमें कंप्यूटर साइंस है. फिर दूसरी बात ये लिखते हैं कि जी इसमें जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, और फिर इसमें जो है ये मैनेजमेंट साइंस भी है, ठीक है. फिर आप कह देंगे यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है,
and then you have to write there are some parking areas, and there is there is a mosque, and also you can say that there is some cafeteria area. And so these are some techniques to write down your essays by using cluster technique. इसका ये मतलब हुआ कि आप जो है वो प्री राइटिंग में डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके हम इसको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आपने प्री राइटिंग कर ली, यहाँ तक हम ये समझ लेते हैं कि प्री राइटिंग में आपने क्या कर लिया, आपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके लिख लिया, ठीक है। अब कीवर्ड्स जो आपको फर्ज करें कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो उसके बारे में आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके कीवर्ड्स को निकाल लेना। अब कीवर्ड्स को निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने अभी आपसे एक डिस्कस की, इसी तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब जो सेकंड स्टेप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट इसका जो राइटिंग प्रोसेस में जो सेकंड स्टेप है उसको हम कहेंगे कि वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है। अब प्लानिंग से क्या मुराद है? प्लानिंग मींस कि आपने जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, उसको एलेबोरेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू प्लान, ठीक है। फर्ज करें कि हम मैदान जंग में जा रहे हैं, ठीक है, कोई मैदान जंग है, वहां पे हमने जाना है, और आपका ये यकीन है और आपका ये एम है कि आपने वहां से सक्सेस हासिल करनी है, ठीक है, कि आपने वहां पे जाके वो डिफीट नहीं होना, ठीक है, आपने वहां पे सक्सेसफुल होके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक अपने माइंड में आप एक प्री प्लानिंग करेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये फर्ज करें, अगर हम राइटिंग की बात करें तो हम कहेंगे कि ये जी प्री राइटिंग की बात हो रही है। तो जब हम उसको प्री प्लान करेंगे, हम उसके बारे में डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई अपने माइंड में सोचेंगे, तो फिर आप वहां पे आ जाता है प्लानिंग करना, ठीक है। अब प्लानिंग में क्या होगा? प्लानिंग में आपने करना है कि आपने जो प्री उसके बारे में प्रिपरेशन की है, जो तैयारी की है, उसको आपने जो प्लान करना है कि आप उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो उन इसी तरह से यहाँ पे भी जो हम है, अगर आप उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से प्लानिंग करके उनको एलेबोरेट करेंगे तो वो सक्सेसफुल, डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुली उसको अचीव कर लेंगे। हाँ। इसी तरह से राइटिंग का की अगर हम बात करें तो राइटिंग में भी आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डेफिनेटली उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा और उसके बाद कौन सा, यानी आपने उसको इंटरलिंक्ड पैराग्राफ को इंटरलिंक्ड कैसे करना है, ठीक है। यू हैव टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, and what necessary part will come first, and then the second important, and then the third important. So ये तो बात होगी प्लानिंग की। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग की। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। फर्ज करें कि एक जो पैराग्राफ जो आपने थर्ड पैराग्राफ लिख दिया, वो आपको सेकंड पे लिखना चाहिए था, या वो पैराग्राफ आपको फर्स्ट पे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये ना हो कि आपने जो पहला पैराग्राफ लिखना था वो आपका फर्स्ट पे होना चाहिए था, वो आपने लिख दिया थर्ड पे। तो दिस इज द रॉन्ग ऑर्गेनाइजिंग योर कीवर्ड्स, ठीक है। तो you have to organize your keywords or the key points, that what point should be first and then what should be in the second paragraph, and then what should be comes in the third paragraph. So this is the second step about the writing process of planning and organizing. And when we go forward, there comes the next step, that is the drafting. It is in the red, the color of the drafting word is in red.
red color, and this footstep that you are going to make the first draft of your essay. So it shows that the when there is a red color, it means that there is some danger or something is very important for you. Yes, drafting is important for the writing process. This step is really important in this whole process because after pre-writing and planning and organizing, you have to, uh, fight in the middle of the the two parties, and you have to fight each other. So there is planning is behind you and pre-writing is behind, and what you fight is the outlook of your thinking and your planning and your organizing. So like this example, this is the same way, that the writing process is the same way that आप यहाँ पे आप जब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करके जब आप अपने प्री राइटिंग में जो आपने कीवर्ड्स बनाए हैं, अब आपने ड्राफ्टिंग में आप आगे यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब जब आपने यहाँ पे आगे उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, तो वो जो आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में, ठीक है, सेंटेंसेस की फॉर्म में या पैराग्राफ की सूरत में जो आपके पास रिटन मटेरियल आएगा, वो क्या होगा हमारा, वो आपका होगा ड्राफ्टिंग। ठीक है जी। तो ड्राफ्टिंग में जब आप हम आगे अगली स्लाइड्स में ये पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, अब हमारे हमने क्या क्या काम कर लिया, हमने प्री राइटिंग करके कीवर्ड्स ले लिए, हमने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करके हमने उसको डायरेक्शन दे दी, और हमने अपने माइंड बना लिया कि कौन सा जो कीवर्ड है वो पहले आएगा, कौन सा सेकंड पे आएगा, और कौन सा फिर उसके थर्ड पे आएगा। अब इतना काम करने के बाद फिर हमने जब उसको रिटर्न फॉर्म दे दी, तो वो हमारे पास एक ड्राफ्ट आ गया। अब ये है आपका फर्स्ट ड्राफ्ट। अब ये आपका, दिस इज नॉट योर फाइनल और योर draft for submission, not, because this is just it's just the elaboration of your keywords. You have to proofreading and something, there is some mistakes and there is some grammar mistake, there is some article missing and some prepositions wrong, use of wrong preposition, and after uh, you can also find there is some spelling mistakes and other very important issues you will find while proofreading. So till now, in the third step, you have something in a written form. ओके, तो जब आप रिटर्न फॉर्म आपके पास आ गई, तो फिर आपने यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या करना है, उसको रिवाइजिंग एंड एडिटिंग करना। ठीक है। अब रिवाइजिंग एंड एडिटिंग पे जाके आपने उसको रिवाइज कैसे करेंगे, आप उसको दोबारा से एक दफा रीड आउट करेंगे, जो आपने लिखा है उसको रीड आउट करेंगे एंड देन उसको एडिट करेंगे। अब एडिट में आपने चेक करना है कि किसी का स्पेलिंग, किसी की ग्रामर, कहीं पे पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा, कहीं पे जो कॉमा है, फुल स्टॉप है, या कोई और आर्टिकल मिसिंग है, यहाँ पे आप उसको जाके एडिट कर देंगे। ठीक है जी। अब ये सारे काम करने के बाद, ये फोर स्टेप कंप्लीट करने के बाद, यू विल कम एट द फाइनल ड्राफ्ट। अब ये सारी रिवीजन और एडिटिंग करने के बाद जो आपके पास जो फाइनल रिटन फॉर्म आएगी, उसको हम कहेंगे कि जी ये आपकी जो फाइनल ड्राफ्ट है वो आ जाएगा आपके पास। क्लियर? आई होप के आपको यहाँ तक जो 5 स्टेप्स थे राइटिंग प्रोसेस के,
वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसका जो इंट्रोडक्शन है राइटिंग प्रोसेस का, वो उसकी डेफिनेशन उसको हम पढ़ेंगे। तो दिस स्लाइड्स starts with the definition of writing process, then what is the writing process, कि जो लिखने का एक जो तरीका है वो क्या है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि राइटिंग एन ऐसे, अब ऐसे का मैंने आपको बता दिया कि उसकी 4 टाइप्स होती है, ठीक है। अब वो हर टाइप का आपका आ सकता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि राइटिंग एन ऐसे टेक्स टाइम, कि अब जब आपने आपको कोई ऐसे लिखने के लिए दिया जाए तो डेफिनेटली इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाई राइटिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए प्रोसेस। इसका यही मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राइटिंग का ये मतलब नहीं है कि जी जस्ट आपने राइटिंग आपने करनी है और बस लिखते जाना है और जी हो गया है वो, ठीक है। बल्कि राइटिंग इज ए डिफिकल्ट टास्क, सो यू हैव टू गो थ्रू ए प्रोसेस, ठीक है। जैसे फर्ज करें आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो ये नहीं कि जी आप चुप करके घर से उठ के आएंगे और क्लास में जाके बैठ जाएंगे, नो, दिस इज नॉट। So the way you have to choose that you have to come to university, fill the admission form, and then आप पहले आएंगे फॉर्म को फिल करेंगे, and then there is possibility they will take some written test, or you can say that the selection test. तो फिर उसके बाद जब वो टेस्ट पास करेंगे फिर लिस्ट लगेंगे, फिर आप फीस पे करेंगे, देन आप उस चीज के एलिजिबल होंगे कि आप घर से उठ के आके क्लास में बैठ जाएंगे, जब आप प्रॉपरली एक प्रोसेस के थ्रू जाके आप उसमें रजिस्टर्ड होंगे। तो यही तरीका हमारा राइटिंग में है कि जी राइटिंग जब भी आनी है कोई भी टास्क, तो उसको डायरेक्टली लिखने के बजाय आपने उसको क्या करना है, एक प्रोसेस में से गुजारना है, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन अदर वर्ड्स के दूसरे तरीके में क्या है कि ए राइटर गोज थ्रू सेवरल स्टेप्स, कि जो राइटर होता है वो सेवरल स्टेप में से गुजरेगा, ठीक है। प्रोसेस है ना, उसमें से गुजरना तो है, बिफोर ही और शी हैज ए कंप्लीट essay रेडी टू टर्न इन फॉरेन ट्रेड। कि जब आप कह दें कि जी जी ये टास्क था, रिटर्न टास्क था, ये हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब उसको आप मुख्तलिफ स्टेप में से गुजारने के बाद ही आप उसको सबमिट करवाएंगे ना। ये तो नहीं कि अब आपने उसको सेवरल स्टेप में से गुजारा ही नहीं है और कोई ऐसे लिख के दे दिया, तो इट मींस दैट कि वो उसमें आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जब आप उसको सेवरल स्टेप में से गुजारेंगे, डिफरेंट स्टेप जो मैंने हमने पीछे लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे, उसमें से गुजारेंगे तो डेफिनेटली इट विल लुक्स वेल organized essay and well you can say that it an essay कि उसको देख के पढ़ के और दिल करे कि जी ये इस बच्चे को तो A+ बनता है, इसने वेल ऑर्गेनाइज किया है, पूरी प्लानिंग की है इसने सारा, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है कि दिस लेसन टॉक अबाउट दोज द स्टेप्स ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। कि ये जो हम बात कर रहे थे पीछे, ये हम राइटिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे कि जो पहला स्टेप है वो प्री राइटिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर ड्राफ्टिंग है, फिर रिवाइजिंग एंड एडिटिंग है, फिर हैंडिंग इन द फाइनल कॉपी। तो फिर मतलब फाइनल कॉपी का जो आपका फाइनल ड्राफ्ट है वो बन जाता है। So this is the main introduction slide about the writing process. यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सबको इस बात की समझ आ गई होगी कि जो राइटिंग प्रोसेस है उसके कितने स्टेप्स हैं और वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे होते हैं। तो इसको करने के बाद हम थोड़ा सा इस पे जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि जी इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो है वो
हो सकती हैं।